come to the end of this chapter. Now we go to the other book, The Miracles of Your Mind, in which we are doing about relationships between partners. तो हमने फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स में पढ़ा था कि जब शादी आप ढूंढ रहे हो किसी को रिश्ते के लिए, लड़का लड़की ढूंढ रहा है या लड़की लड़के से शादी करना ढूंढ रहा है, तो फिर किस तरह से करना चाहिए, एफर्मेशन सीखे, सब सीखे। ठीक है, तो अब आगे तो बढ़ना ही है। अब पीछे इतना ज्यादा रिकैप हम करते नहीं है, बिकॉज अगर आपको मालूम करना है और आप पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आप प्लीज येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे वाला सेशन सुन लीजिए इस वाली किताब का। ठीक है, आज हम फॉर एग्जाम्पल से शुरू करेंगे एंड श्याम जी इज रीडिंग फॉर अस, Good वर्ल्ड्स बेस्ट morning. सिंगर। Good morning, ma'am. Good And happy morning. Guru Purab to all. Thank you so much on behalf of everyone and me. Shall I start, ma'am? बिल्कुल जी, फॉर एग्जाम्पल। For example, a woman will never lack for wealth or health if she applies the technique outlined in the respective chapters of this book. Her wealth can come to her independent of her husband, father, or anyone else. A woman is not dependent on her husband for health, peace, joy, inspiration, guidance, love, wealth, security, happiness, or anything in the world. Her security and peace of mind come from her knowledge of the inner powers within her and her consent and her constant use of the laws of her own mind in a constructive fashion. Marrying for money or to get even with someone is, of course, a farce and a masquerade. A man and a woman must be subjectively united in the sense that a real love or sense of oneness prevails. In other words, two hearts are united in love, freedom, and respect. A number of people have said to me, "Oh, we love each other. Why should we bother getting married?" The answer to this is extraordinarily simple. What we subconsciously feel and accept as true is always objectified or made manifest on the screen of space. Their reasoning, therefore, is false and insincere. The law of mind is as within, so without. Let us take the case of a man or a woman who has made an honest mistake. She now finds herself married to a drug addict. He refuses to work. She has to support him. He is ruthless and cruel. It is cruel. Sorry, I'm sorry. Sir. It is true that due to her state of mind, she attracted that she attracted that man. Yet she is not condemned to live in a world of misery brought about by her own mood or ignorance. Had she used her subconscious mind in the right way, this would have not happened. I am sure that if you fell into the gutter, slipped, perhaps on a banana peel, it would be silly to condemn yourself and stay in the gutter. The obvious thing to do would be to get out of the gutter, wash yourself, and keep on going. The woman herein referred to packed her belongings and left this man. She realized it was an intolerable situation. Surely, this woman is not condemned to live with this man when their hearts and minds are miles apart. You can tie two people together with a rope, yet they can be as far apart as the poles in thought, feelings, and perspective. You are divorced mentally when your mind and heart are elsewhere. To stay together in such circumstances is chaotic from all angles. Marriage is a union of two hearts. There is no marriage where the hearts are not bound together in love and peace. Adultery takes place in the heart first. The heart is the seat of the emotions. If you are resentful, hateful, and critical of your partner, you have already committed adultery in your heart. To direct your mental and emotional operations along destructive and negative channels,
is to commit adultery. Always remember, the adulterous state takes place in the mind. Bodily acts follow mental states, they do not proceed. Perhaps, as you read these pages, you are saying, I know a young couple who got married recently. They both use the law of mind. They seemed perfectly happy in every way. Now they are contemplating a divorce. The mental attitude which attracted and endeared them to each other must be maintained and strengthened. In order to preserve the marriage, if a disagreement arises or some slight argument occurs, and one of the partners engages the mind on a negative idea such as resentment or hostility, he is uniting with error in his mind, and it is destructive to marital happiness. The little arguments and quarrels which married couple engage in will not hurt. It is a sustained grudge or ill feeling which does the damage. When the harsh words said are all forgotten and forgiven a few minutes later, no harm has been done. It is when your feeling of being hurt is prolonged that the danger lies. If a man begins to brood, grows morbid against his wife because of the things she said or did, he is committing adultery since he is mentally engaged in bitterness. This mood will endanger the marriage except he forgives and radiates love and goodwill to his partner. Let the man who is bitter and resentful swallow his sharp remarks. Let him go to great length to be considerate, kind, and courteous. He can deftly skirt the differences. Through practice and mental effort, he can get out of habit of antagonism. Then he will be able to get along better, not only with his wife, but with business associates also. Assume the harmonious state and eventually you will find peace and harmony. Yeah. Thank you, Shamji. इतना ही पढ़ेंगे. Thank you So so much, ma'am. much for reading so This is beautifully. a nice topic, really. Yeah. Everybody can relate to it because कई बार ऐसा होता है that like two people are living together तो सबको लगता है वाओ इनकी तो relationship कितनी amazing है but हमको पता नहीं है how much they've worked at it, so there are एक, no एक बात relationship. कहूंगा, जी. हमारे बड़े ये कहते थे मैम, कोई भी बात हो तो उसको खत्म करके सो. हाँ. ये नहीं है कि भाई अनफिनिश सो जाओ अपना बिना बात करे इधर उधर. उसको खत्म Communicate, करके. talk, get it out. This is Yeah, what it's just the we. same thing, yeah. हाँ. या नेवर स्लीप विद अ ग्रज बिकॉज वो बिटरनेस जो होती है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. सो इसमें होता है कई बार, देखो सारी रिलेशनशिप्स आर नॉट मेड इन हेवन. कई बार शादी होती है, यूनियन ऑफ टू पीपल, दे आर मैडली इन लव एंड दे गेट मैरिड. 2 साल के बाद पता लगता है उनका डिवोर्स हो रहा है, 3 साल के बाद पता लगता है उनका डिवोर्स हो रहा है, या अगर वो साथ भी रहते तो नहीं होता. बट इट रियली डजंट मैटर. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे वही बोल रहे हैं दैट हार्श फीलिंग्स और बिटरनेस नहीं होनी चाहिए, है ना. ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप साथ रहना चाहते हो या यू वांट टू वर्क एट योर रिलेशनशिप. और अगर प्यार है तो ऑटोमेटिकली वर्क करोगे. मेरा ये बहुत मानना है कि अगर अगर दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके दूसरे इंसान के लिए और आपको लग रहा है कि रिश्ता टूट सा रहा है तो आप वर्क करोगे. यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो इसमें ये लास्ट वाले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है दैट वो एंटागोनिज्म जो होता है वो चेंज होके यू कैन डेवलप a considerate, kind and a courteous heart. So you can skirt out the differences, क्या है क्या नहीं है ना. But practice and अपने mental effort के साथ में, not that आप दूसरे इंसान को बोल रहे हो कि तुम ये ऐसे करोगे, अगर तुमने साड़ी पहननी शुरू कर दी तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर तुमने ऐसा किया मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. Times are changing now, है ना. जो इंसान समय के साथ चलता है आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ता है. जो इंसान समय के साथ नहीं चलता है वो स्टक रह जाता है. लेकिन हमारे अंदर आज इंसिडेंटली सो हैपेंस दैट बोथ आर चैप्टर्स आर इन अलाइनमेंट विद ईच अदर. यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही है. यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है दैट गेट आउट ऑफ दैट हैबिट ऑफ एंटागोनिज्म, है ना. अपने आप जब आप अपने उस रिश्ते में पीस लेके आओगे, बिकॉज पीस विद इन नहीं है तो वो विदाउट भी नहीं होगा. अगर दूसरा भी, मान लो एक पार्टनर आपको मिला, आपको उससे नहीं ठीक से बन रही है
और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं क्योंकि आपके विचार भी नहीं मिलते हैं, और वन पर्सन इज वेरी एक्टिव, दूसरा बहुत लेजी है, कुछ भी है, तो आप नहीं साथ में रह पा रहे हो, ठीक है? तो फिर आप उस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा डेफिनेटली, और चला जाएगा। लेकिन फिर ये कॉज जो था ना, ये एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। अब जो मान लो आपको लगता है दूसरा इंसान आया, ठीक है, दूसरा इंसान भी ऐसा ही आएगा, उसके साथ भी शुरू शुरू में तो ऐसे लगेगा बिल्कुल, लाइक दिल वो सब मिल रहे हैं, सब है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उसके साथ भी धीरे धीरे वही पैटर्न शुरू हो जाएगा, बिकॉज कॉज तो हमारे अंदर था। सो इफ वन पर्सन गोज अवे एंड इफ सेकेंड पर्सन ऑल्सो कम, सो इससे अच्छा अपना ही हार्ट चेंज कर दो, है ना? बिकम सो फुल ऑफ योर सेल्फ एंड सो मच इन लव विथ योर सेल्फ दैट यू डोंट स्टार्ट पिन पॉइंटिंग लिटिल लिटिल थिंग्स, बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही चीजें जिंदगी में मिलती हैं जो आपके अंदर वो है, मतलब जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रेसिडुअल है, वही चीजें मिलेंगी उस पार्टनर में, और वो इंसान आपके साथ रहता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इसमें दैट बहुत क्लियरली दैट अगर आप वही डिफरेंसेस सॉर्ट आउट, ऑफ कोर्स डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे जाके समझाएंगे इस चैप्टर में कैसे करना है, क्या एफर्मेशन करनी है, जो भी है ना? सो मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट है, आई गिव एंड रिसीव ओनली लव फ्रॉम एवरी पर्सन आई मीट। तो मैंने दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, बस लव है, हर इंसान के लिए प्यार है, और हर इंसान से मैं प्यार देती हूँ, हर इंसान से मुझे प्यार मिलता है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे होटल्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट्स में हो, चाहे पब्स में हो, चाहे वो ड्राइवर्स हैं गाड़ी के, चाहे वो रैंडम लोग हैं जो सड़क पे मिलते हैं, है ना? अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिला दोगे दैट आई गिव एंड रिसीव ओनली लव फ्रॉम एवरी पर्सन आई मीट, और ये जो प्रैक्टिस है हील माई रिलेशनशिप की जो हमने की, हम कितनी बार कर चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर ग्रज है ना, तो हमको इस एफर्मेशन को उसके साथ जोड़ लेना चाहिए that I give and receive only love from every person I meet. My heart is always so full of love and universe has my back. So my heart is so full of love. So I have only that. तो मेरे पास लव और ग्रज एक दिल में थोड़ी रह सकते हैं, एक बार में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो या तो लव रहेगा या ग्रज रहेगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपनी फाइन ट्यूनिंग करो, सुपरफिशियली करने से कुछ होगा भी नहीं, इसीलिए रोंडा बॉय ने उसमें लिखा हुआ था कि दिल दिल से करो, आप दिल दिल से पूछो कि क्या है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके आपके उसका आपका रिश्ता के बीच में आपको कोई एंगस्ट नहीं रह जाएगा, एंड यू विल सी कि उसके कारण आपके पास पैसा आने लग जाएगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके लाइफ में बहुत अच्छे मतलब कुछ ना कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आपके बाकी के रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे, यू विल बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड दिस इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस जो अपने साथ होता है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है दैट अज्यूम द हार्मोनियस स्टेट एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड पीस एंड हार्मनी फ्रॉम विद इन, एंड ऑफ कोर्स वो हमको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन, एंड पीपल जिनका बहुत ही रॉकी रिलेशनशिप या बहुत ज्यादा ग्रज है पार्टनर के साथ, वो आप प्लीज 108 बार होपोनोपोनो भी कर सकते हैं, ठीक है? होपोनोपोनो भी कर सकते हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। होपोनोपोनो तभी वर्क करता है जब आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर आई एम फीलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, कि मुझे ग्रज है, मुझे उस पर गुस्सा है, जो भी है, जो मेरे अंदर जो फीलिंग है, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी टू माई सबकॉन्शियस माइंड फॉर एनीथिंग दैट आई हैव डन, जो भी मैं बुरा सोच रही हूँ, जो मैं ट्रबल कर रही हूँ आपको, अपने अंदर के डिवाइन गॉड को, या अपने सबकॉन्शियस को, एंड थैंक यू, आई लव यू फॉर क्लीनिंग दैट फ्रॉम माई लाइफ। ओके, उसके बाद आप 108 बार करो, तो आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वो जैसे ही क्लीन होगा आप देखना आपका एटीट्यूड जिंदगी के लिए बदल जाएगा, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो ऑफकोर्स वो 10 पॉइंट्स आज बैठ के तसल्ली से लिखना, जब बहुत सारा, एंड ट्राई टू गेट लव इन योर हार्ट, है ना? बिकॉज उस अंदर, उस इंसान के अंदर भी एक भगवान है, अभी भी है, था, अगर वो दुनिया में नहीं है तो, है ना? तो जहां पे भी है, वाइब्रेशंस आपकी जाएंगी उस पर्सन की तरफ, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं, ठीक है? वाइब्रेशन जाएंगी, कोई भी वाइब्रेशन अगर वो इंटेंशनली डायरेक्टेड होती है किसी भी चीज की तरफ, तो वो वहां तक इंस्टेंट पहुंच जाती है, बिना टाइम और स्पेस कंज्यूम किए। देयर इज नथिंग लाइक इतना स्पेस है और इतना टाइम है, ठीक है? वो इंस्टेंटली इसी वक्त उसके पास पहुंचेंगी, और अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, ठीक है? सो वील जस्ट टेक अ लीव,
And thank you so much, each of you, and see you tomorrow from New Delhi. Bye bye. Take care.